Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, our resources. Read the spelling. Resources. Okay, so what is resources? So the things that are blessed or gifted to us. अब हमें कौन गिफ्ट देता है? तो हमें गॉड या तो फिर मदर नेचर हमें गिफ्ट दे दे. हमारे पास क्या क्या है रिसोर्सेज? मतलब whatever we have, that is called our resources. So there are two types of resources. First is natural resources and next is human resources. Natural resources मतलब the resources that are blessed by mother nature. मतलब भगवान ने हमें दिया है. That all things are called natural resources. Can you give me some examples that are gifted by God to us? Yes. Soil. Okay. Yes. Yes. You. Water. Very good. Last page. Trees. Okay. Plants. Yes. Sunlight. Yes. Last page. Food. Okay, that is plant on gift. Yes. Air. Yes. So sunlight, water, air, plants, trees, soil, etc. These are the resources that is considered as natural resources. So first we will learn about these things. Okay. So let's start this chapter. So here one question is given. Put a tick in front of our natural resources and a cross against others. तो आपकी बुक में जो दिखा है, जो वाटर क्या है, वो नेचुरल है. Put a right tick in front of the box. Coal, natural. Yes. Air, natural. Soil, television, no. So put a cross over it. Car, no. Right? So now you are getting the idea which things are natural and which are human made, otherwise man made resources. Right? चलो, now we are going to learn about the details. यहाँ पे हमें एक ये हमें चार्ट मिला है ना? हाँ, तो इसमें resources are of two types. Which two types? Natural resources and human resources, otherwise we can say man-made resources. है जो resources को humans ने बनाया है. Right? चलो, तो natural resources are again further classified into two way. कौन सा है? Read this spelling. What is this? Exhaustible. Right? Now inexhaustible मतलब जो कभी भी खत्म ही नहीं होंगे. They will never finish. Okay? आप उसे जितना भी यूज करोगे, it will never finish. है ना? For example, आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं. है ना? आपने आज एक चॉकलेट खाई, नेक्स्ट डे अनदर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो योर 5 चॉकलेट्स विल बी ओवर आफ्टर 5 days. खत्म हो जाएगी ना? हाँ. देन आफ्टर यू डोंट हैव एनी चॉकलेट्स टू ईट. राइट? तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. खत्म हो गया. जो चीज आपके पास है, यू यूज्ड इट एंड इट इज ओवर. दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. And the things that you use every day but it's not finished. For example, soil. जो जमीन है आप रोज यूज करते हो ना. Morning you are getting up from the bed, then first thing you do the put your legs over the soil. है ना? soil के ऊपर पैर रखते हो ना, फिर उसके ऊपर चलते हो, दौड़ते हो, रन करते हो. You whatever do with the help of soil. आप हवा में ऐसे तैर सकते हो? No. You need soil compulsory for stand and do whatever activities. Then water.
वी आर ब्लेस्ड विथ नेचुरल सोर्स वाटर, कितना सारा पानी है, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल एटसेट्रा, है ना। तो सब जगह पानी कहाँ से आता है, वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर बाय वाटर साइकिल, है ना। दैट एयर वी आर एवरी डे एवरी मिनट वी आर ब्रीदिंग, है ना, ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हो आप, ऐसे करते हो, ये क्या है, ब्रीथ, ब्रीथ क्या करते हैं हम, एयर, तो एयर इतना सारा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, देन ओनली ईच एंड एवरी पीपल, इवन प्लांट्स आर आल्सो ब्रीदिंग, देन ओनली एयर नेवर फिनिश्ड, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा होता है कि आज हम बहुत सारे लोगों ने एयर ब्रीथ किया तो कल खत्म हो गई, नो, इट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देन सनलाइट, सन भी रोज सनलाइट मिल देता है ना हमें, एवरी डे मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट एंड फोकस इट्स सनलाइट ओवर द अर्थ, है ना, हमारे ऊपर सनलाइट आती है। ऐसा होता है आज सन बोले नो नो टुडे आई एम नॉट इन अ मूड, आई विल नॉट गिव यू सनलाइट, इज इट पॉसिबल, नो, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी किसके एग्जांपल है, inexhaustible resources. I will ask the question, write the examples of inexhaustible resources. तो आप क्या लिखोगे, soil, water and sunlight, okay? चलो, now move to the next part of the natural resources, that is exhaustible resources. exhaust मतलब खत्म हो जाना, है ना, जैसे हम उसको यूज करते हैं, इट्स फिनिश्ड, ओवर, ओके, तो क्या खत्म हो जाता है, तो फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट इज दिस, रीड दिस, FOSSILFUELS, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मतलब तो सॉइल जो है ना, ये जो सॉइल के आप डिग करोगे, इफ यू उसको खोदोगे तो क्या करोगे, अंदर बहुत डीप, वेरी डीप इनसाइड आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, ओके। तो व्हाट इज दैट वी विल लर्न इन अवर दिस चैप्टर। देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पता है आप सबको, जंगल, व्हाट इज फॉरेस्ट, सो मेनी ट्रीज ग्रो अप टुगेदर, दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट, है ना, समझ में आया ना। तो फॉरेस्ट भी अगर आप उसको यूज करोगे, इफ यू कट सो मेनी ट्रीज, तो धीरे 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 वो फिनिश हो जाएंगे, है ना। तो फिर फिनिश हो जाएंगे तो हम प्लांट करेंगे तो वापस भी तो ग्रो हो जाएंगे, है ना। बट व्हाट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पता है आपको, द थिंग्स दैट विल नॉट अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। आप आज आपने एक पेड़ काट लिया, you cut a tree today, तो कल वो ग्रो हो जाएगा, परसों, एक महीने में, 2 साल में, 5 साल में, आफ्टर 20 to 30 years it need to grow a tree, है ना। तो in nearby future these forests are not available. वैसे ही ये जो fossil fuels है वो भी ग्रो होते हैं, वो भी वापस बनते हैं, but it need lots of time, 50 to 100, more than 500 years it need to create it once again, and that's why it's considered as exhaustible resources. समझ में आया, okay? चलो, now we will move ahead to the chapter, okay? चलो, आपका पेज नंबर 112 निकालो। तो चलो, now look at the board. We cannot live without air and water. Is it true? True. Yes. Yes, we are living beings, ने? हाँ, और plants भी living beings है ना? हाँ, तो what we need to survive, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? First of all, air. दूसरा क्या चाहिए, वाटर। फिर थर्ड थिंग हमें क्या चाहिए, फूड, है ना। ट्री होगा तो फूड आएगा, है ना। तो फर्स्ट
we need food, right? So we cannot live without air and water. Plants and animals also play a major role in our survival. Plants भी हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. कैसे? तो plants are growing and उसके ऊपर fruits, flowers, leaves, stems, roots आते हैं, and that we are using as our food. हम उसे खाते हैं, है ना? हाँ, खाते हैं ना? हाँ, डिफरेंट वेजिटेबल्स हम खाते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स है, पता है ना आपको? हाँ, कैरेट अभी आपको मिल रहा है मार्केट में, है ना? तो इट्स अ रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो स्टेम है वो क्या है? पोटैटो इज अ स्टेम ऑफ द पार्ट. यस, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग को वाटर, एयर, फूड कुछ भी नहीं. यस यस, एब्सोल्युटली राइट. राइट, तो हमें प्लांट्स भी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इन आवर सर्वाइवल. एनिमल्स कैसे? एनिमल्स नॉन वेजिटेरियन. यस, एनिमल्स में से कौन एनिमल? तो सम एनिमल्स आर गिविंग अस मिल्क. कौन मिल्क देता है? Buffalo, goat, है ना? These are giving us milk. Honey bee gives us honey. Then eggs कहाँ से मिलते हैं? चिकन. हाँ, जो hen है, hens are giving us eggs. Some non-vegetarian people are having meat of hen and goat, है ना? तो that's why animals are also very important in our life. चलो, rocks, minerals, soil, sunlight and even fossil fuels are useful to us in many ways. हमारे लाइफ में और कौन-कौन इम्पोर्टेंट है? तो rocks. rocks मतलब पत्थर भी जरूरी है ना? हाँ, क्यों चाहिए? To build our house, school, society, road, सब कुछ बनाने के लिए वो पत्थर तो चाहिए, right? Minerals, तो मिनरल्स भी चाहिए हमें. किस चीज के लिए? तो फॉर न्यूट्रिएंट्स, है ना? हमने लर्न किया था लास्ट ईयर में. मिनरल्स चाहिए. सॉइल क्यों चाहिए? वी नीड सॉइल फॉर वॉकिंग, है ना? फॉर जंपिंग, फॉर फार्मिंग. यस. देन सनलाइट क्यों चाहिए हमें? लाइट के लिए, देखने के लिए और फार्मिंग के लिए. Sunlight is needed. Sit down. Sunlight is needed for photosynthesis first of all. Yes, yes. है ना? Then only plants can produce any flowers or fruit. So sunlight is needed for the growth of each and every human beings, plants and animals. है ना? हाँ, सनलाइट ही नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा. How can we see any of the things? आप देख सकते हो कुछ भी अंधेरे में? No. तो sunlight is very important. Then even fossil fuels. तो fossil fuel में क्या क्या आएगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG. तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल से. तो they are very much useful in many ways. From onwards we will learn tomorrow. Thank you very much, children.